ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਜ਼ੈਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਚ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਜੀ ਕਰੋ ਬਸ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਇਬਹਾਮ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜहाँ तक ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਕਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਫਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਐਸੇ ਕਹਤੇ हैं, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਤਅਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨੇ ਕਿ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ फरमांदा कुल हु अल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਵਈਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨੋ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਹੋ ਕਾਫੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਜ ਬੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੱਜ ਬੈਸੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਤਸਲੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਛਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਔਰ ਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ 100% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੈਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਈਸਾਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੂਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਫਾਤ ਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਨਹਾਜੁਨ ਨਬੂਵਾ ਉਸ ਮਨਹਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਫਾਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਜਦ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਆ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ? ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਵਾਲਾ। ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ ਵਾਲਾ। आप लोग बोल रहे हैं तो एक वो लानता था किसी ने ट्रक सुटाया है, खान साहब का केड़ा मैसेज है? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਐਡੀ ਹੈ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? आप लोग बोल रहे हैं ये उस्मान डार था, पहले भी हो रहा था, मिर्जाई लुकमान कहंडा वाला ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਭ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਉੱਤੇ। मैं पढ़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕੀ। तेरी माँ एक है सारे महल्ले वाले हरामी तेरे बाप हैं,
ਮੁਤਾਕੀ ਪਰਦਾਵਾਰ ਕੰਜਰ ਆਰਾਮੀ ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ है। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। आप लोग बोल रहे हैं हंस, बस लानते ही तुम्हारे दिमाग में। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਲਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਜਫ ਅब्बास ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠ। ਰੋਕ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਨਜਫ ਅब्बास ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਨਜਫ ਅब्बास ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਲੋਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਾ ਜਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਨ ਫੜਾ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਜਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1380 ਦਾ ਨਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਜਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, मैं पंडित लेखराम के हवाले नाल गल पेश करन लगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बराए नेम दिया कि 4 हिस्से शाया किए, तो चूंकि उनमें आर्या वगैरह को चैलेंज किए गए थे, इसलिए आर्या के पंडित लेखराम ने उसका जवाब लिखा, जिसे उसने अमृतसर में 1885 में एक मजमा में सुनाया, जिसमें शरीक होने की मिर्ज़ा साहब को भी दावत थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब शामिल मजमा ना हुए। चंद साल बाद कुछ अजाफात के साथ पंडित लेखराम ने तकजीब इब्राहीम अहमदिया के नाम से शाया किया। पंडित लेखराम बहुत बाजुबान शख्स था। उसने अपनी किताब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद को रगेदने के साथ इस्लाम, कुरान और बानी इस्लाम पर भी सख्त एतराज़ात किए थे। मिर्ज़ा साहब ने 1887 में किताब शहना हक शाया की, तो इसमें हिस्सा पंजम के जल्द शाया करने का वादा इन अल्फाज में दर्ज था। लिखा हुआ है मिर्ज़ा साहब ने, पंडित लेखराम ने हमारी किताब बराइन अहमदिया के रद्द में चंद और आग छपवाए हैं। इस किताब का नाम तकजीब बराइन अहमदिया रखा है। हमें हरगिज़ उम्मीद नहीं कि कोई तमीज़दार हिंदू इस किताब को पढ़कर ये राय ज़ाहिर कर सके कि इसके मौलफ़ को अक्ल और फ़हम से कुछ हिस्सा मिला है, या तहज़ीब और फ़रासत से इसकी फ़ितरत को कुछ ताल्लुक़ नहीं। हम अनकरीब गंद और इफ्तरा इस जहल मुजस्सम का अपनी मबसूत किताब बराइन अहमदिया हिस्सा पंजम में ज़ाहिर करेंगे। 1887 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾइन अहमदिया ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਛਪਿਆ। बहरहाल लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इस वादे से भी वही बेलतफ़ाती का सलूक किया जो अपने दूसरे वादों से फरमाया करते थे। हकीम नूरुद्दीन भेरवी को तकजीब का रद्द लिखने का कहा। जब उन्होंने लिखकर मिर्ज़ा साहब को ख़बर दी तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझे ये बात सुनकर नहायत खुशी हुई कि तकजीब बराइन का रद्द आपने तैयार कर लिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह वल मन्ना। इस रद्द के शाया होने के लिए आम तौर पर मुसलमानों का जोश पाया जाता है। शायद 150 के करीब ऐसे खत आए होंगे जिन्होंने इस किताब के ख़रीदने के लिए शौक़ ज़ाहिर किया है। 4 जनवरी 1888 के ख़त में मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है, लेकिन ये ख़त 28 मई 1910 के अल-हकम अखबार में छपा हुआ है। पंडित लेखराम ने लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया में कहीं बरहमो धर्म वालों से गाली गलोच हो रही है। किसी जगह ईसाइयों को कोस रहे हैं, किसी जगह मसीह को इब्नुल्लाह बना रहे हैं और किसी जगह आर्यों को बुरा भला बता रहे हैं। मुझे इस जगह किसी और से सरोकार नहीं और ना मैं किसी गैर का मुख्तार। हाँ, आर्या धर्म का पैरोकार हूँ और अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि बराहीन अहमदिया को मेज़ान इंसाफ में तोलूँ और उनका इम्तिहान करूं। बराहीन अहमदिया की जिल्द अव्वल में मिर्ज़ा साहब ने ज़ाहरी नमूद बसबूद बल्कि रुपया कमाने के तौर पर बड़े हरफों में एक इश्तिहार का अमल 82 सफ़ों पर दर्ज किया है, जिससे सवाए ज़ाहरी शेखी के कोई किसी तरह का नतीजा नहीं निकल सकता। एक दाना का कौल है, मुश्क आनस्त के खुद बवेद। मतलब उनका इस तमाम लाफो गज़ाफ से सिर्फ यही है कि किसी तरह रुपया हाथ आए। तकज़ीब बराहीन अहमदिया सफ़ा नंबर 4 पे ये पंडित लेखराम ने लिखा है। मौलाना रफ़ीक दिलावरी ने किताब लिखी है रईस कादियान। उसमें वो कहते हैं कि पंडित लेखराम कादियान गया और शराइत ज़ेर बहस पर गुफ्तगू की, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने सुखन तराशी और लैतो लाल से काम निकालना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से उनका मद्दे मुकाबला कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से पीछा छोड़ देता। पंडित ने बतेरी कोशिश की कि इल्हामी साहब किसी तरह कादियान के 1 साला क़याम के माकूल और मुनसफ़ाना शराइत को मंजूर करें और हीले हवाले छोड़कर राय रास्त पर आएँ, लेकिन कामयाब न हुए। जब उन्होंने देख लिया कि ये हीला गरी से किसी तरह बाज नहीं आते और अब शराइत क़याम पर मज़ीद गुफ्तगू बस है, तो उन्होंने एक साला क़याम वो इंतज़ार को बलाए ताक रख कर फ़ौरी एजाज़ नुमाई का मुतालबा शुरू कर दिया। पंडित हर रोज़ इल्हामी साहब के दौलत कदे पर जाता और कहता कि अगर अपने दावों में सच्चे हो तो कोई मौज़ा और करामत दिखाओ, लेकिन बेचारे मिर्ज़ा जी के लिए सर नदामत झुका लेने के सिवा कोई चारा ना था। इसी के साथ पंडित का ये मामूल था कि हर रोज़ सैकड़ों हिंदुओं को जमा करके कादियान के बाज़ार में चला जाता और मजमा कसीर में नहायत ज़हर आलूद तकरीर करके हाज़रीन को खूब हंसाता। खुद मिर्ज़ा ने अपने इसम बेमसमी रिसाला फरियाद दर्द में इन रसवाइयों का बहुत कुछ रोया है। लिखते हैं, जिन दिनों लेखराम ने इस्लाम की निस्बत बदज़ुबानी पर कमर बांध रखी थी और बात में गाली उनके मुंह में थी, उन दिनों उसने जोश में आकर ये कार्रवाई भी की थी कि मुझसे बहस करने के लिए कादियान में आकर 1 महीने के करीब रहा। मैं उससे बहस के लिए इसके ज़िले और गांव नहीं गया और ना मैंने कभी इब्तदान उससे ख़तो किताबत की। वो ख़ुद अपने वहशियाना जोश से कादियान में मेरे पास आया और इस बात के तमाम हिंदू इस जगह के गवाह हैं कि 25 दिन के करीब कादियान में रहा और सख्त गोई और बदज़ुबानी से एक दिन भी अपने तय रोक न सका। बाज़ार में मुसलमानों के गुज़र की जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता रहा और मुसलमानों को जोश दिलाने वाले अल्फाज बोलता। मैंने अंदेशा नक्श अमन से मुसलमानों को मना कर दिया था कि उसकी तकरीरों के वक्त कोई बाज़ार में खड़ा ना हो और कोई मुकाबले के लिए मुस्तैद ना हो। मेरे बार बार रोकने से वो लोग अपने जोशों से बाज आए और लेखराम ने ये तरीक़ इख्तियार किया कि हर रोज़ मेरे मकान पर आता और कोई निशान और मोजज़ा मांगता और सख्त ठट्ठे और हंसी के अल्फाज उसके मुंह से निकलते। वो हमेशा सुबह या तीसरे पहर कादियान में मेरे मकान पर आता और इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तरह तरह की बेअदबियाँ करता और जैसा कि ज़ालिम पादरियों ने मशहूर कर रखा है, बार बार यही कहता कि तुम्हारे पैगंबर से कोई मौजज़ा ज़ाहिर नहीं हुआ और ना कोई पेशगोई पूरी हुई। मुल्लानों ने मज़हब को रौनक देने के लिए झूठे मौजज़ों से किताबें भर रखी हैं। ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर जो मैंने पढ़ के सुनाई है, फरियाद दर्द किताब है, उसके शुरू में ये बात लिखी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब पंडित लेखराम मिर्ज़ा साहब को उनके काशाना तक़द्दस में जाकर जलील कर रहा था, इस्लाम और दाई इस्लाम की शान अक़दस में
दरीदा दहनी की जा रही थी, मुजद्दद वक्त का बुरी तरह मजाक उड़ाया जा रहा था और पंडित हर वक्त मुसिर था कि कोई मौजज़ा दिखाओ। तो अगर मिर्ज़ा में कोई वाकई एजाजी जौहर वदियत था तो ऐसी हालत में उनकी रगे हमीयत क्यों जुम्बश में ना आई? उन्होंने अपना कोई वादा अफगन मौजज़ा दिखाकर इस बेबाक आर्या को घुटने टेकने पर क्यों मजबूर न किया और उसका सर न्याज खाक नदामत पर रखवाकर दूसरे शरीदा सर आदाए दीन के लिए असबाब इबरत क्यों मुहैया न कर दिए? मिर्ज़ा साहब का दावा तो ये था कि अक्सर गुज़श्ता नबियों की निस्बत मेरे बहुत ज़्यादा मौजज़ात और पेशगोइयाँ हैं, बल्कि बाज़ गुज़श्ता अंबिया के मौजज़ात और पेशगोइयों को उन मौजज़ात से कुछ निस्बत ही नहीं, और नीज़ उनकी पेशगोइयाँ और मौजज़ात इस वक्त महज बतौर किस्सा कहानियों के हैं, मगर मेरे मौजज़ात और पेशगोइयाँ हज़ार लोगों के लिए वाक़यात चश्मदीद हैं। गुज़श्ता नबियों के मौजज़ात और पेशगोइयों का एक भी ज़िंदा गवाह पैदा नहीं हो सकता बस्तना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपके मौजज़ात और पेशगोइयों का मैं ज़िंदा गवाह मौजूद हूँ और कुरान शरीफ ज़िंदा गवाह मौजूद है, और मैं वो हूँ जिसके बाद मौजज़ात और पेशगोइयों के करोड़ इंसान गवाह हैं। अब इससे मिर्ज़ा साहब ने क्या साबित किया है कि नबी पाक की मौजज़ात का भी ज़िंदा गवाह कोई नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। बात समझ गए ना? अब आप समझें कि इशारतन मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं। पिछले नबियों को तो वैसे ही नकार दिया और कह दिया कि पिछले नबियों में से किसी के मौजज़े का कोई ज़िंदा गवाह मौजूद नहीं रहे। नबी अलैहिस्सलाम, उनके बारे में वो कहते हैं कि उनका भी कोई ज़िंदा गवाह नहीं है सिवाय मेरे। लेकिन इस दावे के बावजूद अमल ये था कि एक अदुव्वे इस्लाम के मजबूर करने पर भी अपने कैसा मौजज़ात से एक अदद मौजज़ा निकाल कर पेश नहीं कर सकते थे। क़याम कादियान के हालात लिखते हुए पंडित लेखराम ने अपने शायद रसाले में लिखा होगा, आर्या मुसाफिर में या कहीं तकसीब बराइन अहमदिया में लिखा है। कहता है एक दिन ख़ास कस्बा कादियान में मिर्ज़ा साहब के मकान पर बैठे हुए एक साल भर वहाँ ठहरने की शराइत तय हो रही थी। यानी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे एक साल यहाँ रहो कादियान में तो मैं तुम्हें कोई मौजज़ा दिखाऊँगा। असनाए गुफ्तगू में लफ्ज़ ख्वारक आदत की तशरीह होने लगी। मेरा ये दावा था कि ख्वारक आदत कहते हैं आदत या स्वभाव के तोड़ने को। चाकू में चाक करने की आदत है, आग में जलाने की, दरख्त में गैर मुतहर्रिक रहने की और इंसान में चलने की। आप अगर इन आदतों को खुदा की बरकत से तोड़ दें तब मुसलमान हो जाऊंगा, वरना आप आर्या हो जाएं और गलत दावों से बाज आ जाएं। मिर्ज़ा ने फरमाया कि कुरानी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के ये मानी नहीं है। मैंने कहा नहीं है और बतलाओ अगर कहीं है। मिर्ज़ा ने इकरार किया कि कुरान में ज़रूर है। मेरे पास कुरान था और उसी वक्त पेश किया कि इसे ज़रा निकालिए और इल्हाम की फाल डालिए। चंद मिनट तक मिर्ज़ा वर्क गर्दानी करते रहे मगर बिल्कुल वो लफ्ज़ कुरान से ना निकाला और तौअन व करहन फरमाया कि मैं इस दावे से दस्तबरदार हूँ, कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है। उस वक़्त हकीम किशन सिंह व लाला निहाल चंदू, हकीम दयाराम साहब, पंडित अजय किशन व लाला लक्ष्मी भाई व मिर्ज़ा कमालदीन व मुंशी मुराद अली और एक बूढ़ा मुसाफिर बैठे हुए थे जिससे गालिबन मिर्ज़ा साहब को भी इनकार नहीं होगा। मिर्ज़ाइयों, कभी भी आपके मिर्ज़ा साहब ने पंडित लेखराम की इस बात को झुटलाया हो कि लेखराम ने झूठ बोला है, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, तो वो सबूत लाओ। मानना होगा कि पंडित लेखराम ने ये वाक़या दुरुस्त लिखा है कि मिर्ज़ा साहब को उसने कहा भाई कुरान में तो लफ्ज़ ख्वार की आदत है ही नहीं। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि है। अब वो लगे निकालने, कुरान में से मिला नहीं, कोई 40-45 मिनट तलाश करते रहे। फिर आके मिर्ज़ा साहब ने साफ अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया और कह दिया कि भाई मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ।
اور اس کے گواہ بھی انہوں نے لکھے ہیں पंडित लेखराम ने, मिर्ज़ा कमाल दीन, मुर्शी मुराद अली वगैरह, ये सारे गवाह हैं। बाकी कुछ उसने हिंदू वहाँ के कादियान के जो हिंदू हैं, किशन सिंह, लाला निहाल चंदू, हकीम दयाराम, पंडित अजय किशन, लाला लक्ष्मी भाई, ये सारे वहाँ गवाह मौजूद हैं। अब सुनिए आगे पंडित लेखराम ने मिर्ज़ा साहब के इल्हामात की तरदीद कैसे की है। पंडित लेखराम ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद के इल्हामों की तरदीद करते हुए लिखा है, अव्वल 1 साल का अरसा हुआ मुसम्मी जान मोहम्मद कश्मीरी, जो मिर्ज़ा साहब की मस्जिद का इमाम है, उसका लड़का जिसकी उम्र उस वक़्त 5 साल होगी तकरीबन, बुखार से बीमार हुआ था। बढ़ते बढ़ते मरज़ इस कदर बढ़ गई कि बुखार के साथ ही पेचश भी शुरू हो गए। लड़के का खुर्दो नोश यानी खाना पीना बंद हो गया। ऐसा कमज़ोर और नहीफुल बदन हो गया कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देती थी। गर्ज एक रोज़ लड़का ऐन नज़ा की हालत में था और उस वक़्त उसकी हालत को देखकर मजहूल से मजहूल भी यही कहता था कि लड़का कोई दम का मेहमान है। गरज इस इस्तराबी और बेकरारी की हालत में जान मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की खिदमत में आ गया। मिर्ज़ा साहब उस लड़के को देख भी चुके थे। खैर इमाम साहब ने पूरी बात बयान की और कहा कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, मेरे लड़के के लिए कोई दुआ कीजिए। मिर्ज़ा साहब को उस लड़के की तरफ पहले ख्याल था क्योंकि वो आपकी मस्जिद के इमाम का वो बेटा था। कहने लगे, जान मोहम्मद के आने से अव्वल ही मुझको इल्हाम हुआ है कि इस लड़के के लिए कब्र खोदो। मिर्ज़ा साहब के मुंह से ये कलमा निकलना था कि इमाम साहब के होश ख़ता हो गए। आसान ख़ता क्यों ना होते, साथ ही तोते क्यों ना उड़ते, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, वो भी पिछली उम्र बुढ़ापे की औलाद था। इमाम साहब उसी मायूसी और नाउमीदी की हालत में जो अपने घर वापस आए तो इल्हाम का असर नज़र आया जो बिल्कुल इसके बरक्स था, यानी लड़के के सेहत के आसार नज़र आने लगे। मिर्ज़ा साहब का इल्हाम करना ही था कि खुदावंद करीम की कुदरत का तमाशा देखिए। लड़के को दम बदम आराम होना शुरू हुआ। एक ही हफ्ते में लड़का तंदुरुस्त हो गया और मिर्ज़ा साहब अपनी दरोग बयानी और किज़ब लसानी और गलती इल्हाम की ये तवील फरमाते हैं कि हमारा इल्हाम तो हरगिज़ गलत नहीं, ज़रूर किसी न किसी वक्त पर पूरा हो जाएगा। हम कहते हैं कि किसी वक्त बल्कि आन करीब ही आपके वास्ते कब्र खोदेंगे। आहो यानी वो मिर्जा साहब कह रहे थे वो कहता था मारी जाएगा मुंडा। हाँ, कटिंग नहीं देता ही सही। अब ये है मिर्ज़ा साहब की वो बातें जो मिर्ज़ाइयों को बताने की सुनाने की ज़रूरत है। बाकी छोड़ें, बहस बात फजूल है। दूसरा एक उसने तरदीद की है, मिर्ज़ा साहब का एक और इल्हाम लिखा है। वो कहता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मुसम्मी बिशन दास साकन कादियान, यानी कादियान का एक हिंदू है, बिशन दास उसका नाम है, उसको बुलाकर कहा कि मुझे तुम्हारे ही निस्बत ये इल्हाम हुआ है जब मैं अम्बाला के सफ़र पे था कि तू लड़के पढ़ाता है और तेरा नाम अजीज़ुद्दीन है, यानी तू मुंशी बन गया, मास्टर बन गया है, तेरा नाम अजीज़ुद्दीन है। नतीजा उसका ये है इल्हाम का कि तू 1 साल तक मुसलमान हो जावे और ना मर जावेगा। बिशन दास ने पूछा कि अगर ये ज़रूर बात होने वाली है तो मेरा क्या चारा है, यानी अगर 1 साल के अंदर अंदर मैंने मुसलमान भी हो जाना है और मौत भी नहीं आ रही तो मेरे लायक क्या कि मैं क्या करूं। मगर मैं आपसे मशवरतन पूछता हूं कि मेरा मर जाना अच्छा है या मुसलमान होना। मिर्ज़ा साहब ने ज़बान इल्हाम तर्जमान से फरमाया कि मुसलमान होना। फिर बिशन दास ने 1-2 रोज़ बाद दरियाफ्त किया तो कहा कि मुझे ख्वाब आई थी, इल्हाम नहीं था, मगर मेरी ख्वाब भी इल्हाम ही होती है और अक्सर इल्हाम ख्वाबों में होता है। और ख्वाब नामा भी निकाल कर दिखलाया। नतीजा उस ख्वाब का लिखा था कि तुम अपना बंदोबस्त करो, मेरी ख्वाब ज़रूर सच्ची होगी। अगरचे वो बिशन दास सादा लो था, बहुत घबराया, मगर इस तारीख़ नामा निगार लेखराम
भी वहाँ था। जब उसको कामल तौर पर समझाया गया कि ये सिर्फ फरेबबाजी और चालाकी है, तब वो एलानिया तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से मुकाबला करने लगा कि चलो फिर आन दियो मौत अगर आंदी है तो। नीचे यार ये क्या टेक्स्ट बार आपने शुरू किए, ध्यान इधर करें, छोड़ें जो भी लगा लगा रहने दें। बिलाल भाई, जब वो मिर्ज़ा साहब से मुकाबला करने लगा तो मिर्ज़ा साहब हाथ मलने लगे कि ये तो गाली पाएगी मुसीबत, और सोने का मुर्गा था हाथ से निकल गया। चूँकि अब अरसा 1 साल का गुजर गया है और वो बात बिल्कुल वाहियात और मुज़खरफ़ात से भी कहतर साबित हुई। झूठे की पेशानी पर स्याही का दाग कायम रहा और ता क़यामत कायम रहेगा। उन्हीं दिनों में मिर्ज़ा के कई मुजावरों या फुजला खोरों या मुरीदों ने गुमनाम ख़त भी बिशन दास के नाम खैर खाई के इरसाल किए। यानी कुछ छुपे मुरीद जो मिर्ज़ा कादियानी के थे, उन्होंने बिशन दास को गुमनाम ख़त में लिखा कि भाई बेहतर है कि इस्लाम कबूल कर लो वरना मौत आ जाएगी। और वो तमाम खतूत बिशन दास ने नामा नगार के पास भेज दिए। अफसोस कि मिर्ज़ा साहब धोखा देने से बाज नहीं आते और बुलाहाना चालाकियों से नहीं शर्माते, हालांकि बार बार ज़िक्र उठाते हैं। 2.5 साल का अरसा गुजरा कि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था कि उनके घर में से अनकरीब एक अहमद मर जाएगा, क्योंकि तसलीस कायम होती है। मिर्ज़ा साहब का नाम ग़ुलाम अहमद है, बड़े बेटे का नाम सुल्तान अहमद है, छोटे का नाम फ़ज़ल अहमद है। और सादा लोही से ये बात मशहूर भी करा दी कि मतलब ये 3 अहमद हैं, इनमें से एक ने मर जाना। मगर आज तक बावजूद 28 साल गुजरने के एक अहमद भी नहीं मरा और बदस्तूर ज़िंदा है। फिर चौथा एक और उसने हवाला दिया हुआ है, कहता है कि मिर्ज़ा साहब को ख्वाब में खुदा ने कहा कि किसी ने तुझे किताब के वास्ते रुपये रवाना किए हैं। और एक आर्या साहब ने भी वही ख्वाब देखा कि 1000 रुपया आया। चुनांचे जूनागढ़ से मिर्ज़ा साहब को डैश आ गया और हिंदू की ख्वाब में डैश हिस्सा झूठ निकला, क्योंकि वह दीन इस्लाम से खारिज था। कई लोग और कई आर्या गवाह हैं। अफसोस कि मिर्ज़ा साहब ने इस दावा बेमानी की तस्दीक के वास्ते किसी आर्या का नाम ना लिखा, और लिखते किस तरह जब वजूद ही मफकूद था। यानी जब इसका कोई गवाह था ही नहीं तो किसका नाम लिखते, झूठ ही बोला हुआ था। कहता है कई आर्या लोग तो इन दिनों कादियान में मौजूद ना थे और ना कई आर्यों के नाम हैं। बस हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ जहल साजी की और पहले अंदरूनी तौर पर बिलफर सच होने के मिर्ज़ा साहब को ख़त आ चुका था। चूँकि रुपया कमाने के लिए ये सब चलाकियाँ होती हैं, इसलिए ख्वाब में भी अगर देखा तो क्या अजब मस्ताक इस कौल के तिश्नाब ख्वाजा ज़रसग इस्तखवा बेंद बख्वाब। 5वां इल्हाम उसने लिखा है कि एक मरतबा खुदा ने एक राजा के मर जाने की खबर दी और हमने एक हिंदू को बतलाई। जब वो खबर पूरी हुई तो हिंदू ने कहा कि खुल्लम खुला आलम गैब का हाल तुम्हें कैसे मालूम हो गया। वार कादियानी इल्हामी, हम तेरी चालाकी की क्या तारीफ़ करें। ना तो इस राजा का नाम लिखा ना उस हिंदू का, अब हम कैसे एतबार करें इस पर। 6ठा एक उसने लिखा हुआ है वाक़या कि एक मरतबा एक वकील साहब, उन्होंने इम्तिहान दिया, मेरा हाल भेम से इनका ये वाक़या है। लोगों ने भी इम्तिहान दिया, वो पास हो गए, बाकी इस ज़िले से कोई पास ना हुआ। हमने उनको पहले कह दिया था और इस वकील ने इतला दी कि मैं पास हो गया। ए नाजरीन, यहाँ पर नंबर 5 से भी ज़्यादा फ़रेब है। चालाक आदमी बहुत सी ऐसी बातें करके अक्सर लोगों को गर्विदा करते हैं। अफसोस कि मिर्ज़ा साहब ने वकील का नाम ना लिखा और साथ ही कोई गवाह भी ना बतलाए। मिर्ज़ा साहब के बड़े भाई ज़िले के सर रिश्तेदार थे और मिर्ज़ा साहब खुद भी अरसे तक मुलाज़म सरकार रहे और तजर्बाकार हुए। आजकल ये बात तो करामत नहीं कहलाती बल्कि चालाकी और वाकफियत चाहती है।
لاہور میں 20 آدمی ایسے ہیں جو اس قسم کی پیش گوئی تیر بہدف کرتے ہیں اور خطا نہیں ہوتی. بس یہ امر کس طرح پیش گوئی نہیں بلکہ یاوہ گوئی ہے. 7واں یہ ہے کہ ایک مجمل بات لکھی ہے. ہم نے ایک آریہ کو ایک پیش گوئی بتلائی اور اس نے تعجب کیا، مگر ہم اس پیش گوئی کی اس جگہ تصریح نہیں کرتے. لیکرم کہتا ہے مرزا صاحب خدا کے چور کیوں بنتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، ذرا آریہ کا نام اور پیش گوئی کا الہام تو ظاہر کرو. 8واں ہے کہ ایک ہندو آریہ ممبر آریہ سماج قادیان معجزات محمدیہ سے منکر تھا. اتفاقاً اس کا ایک عزیز وہ جیل میں رشتہ دار ہو گیا تو ایک ہندو اور بھی اس کے ہمراہ قید ہوا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس مقدمے کا کیا ہوگا. میں نے کہا غیب خدا کے پاس ہے. اس کے اصرار کرنے پر میں نے دعا کی اور خواب میں مجھے خدا نے ظاہر کیا کہ وہ نصف قید تخفیف ہو کر بعد بھگتنے نصف باقی کے رہا ہوگا، یعنی آدھی قید بھگت کے آدھی چھوٹ جائے گی. اس میں پنڈت دیانند کے پیروں کی گواہی ہے. یہ تھا وہ نام پنڈت دیانند جس کا میں سرسوتی دیانند سرسوتی جس کا دن کے وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ یاد نہیں ہے، جس نے اس کے بارے میں گرو نانک کے بارے میں بھی لکھا ہے. اس کا کوئی پیروکار ہے، کہتا ہے وہ گواہ. لیکرم کہتا ہے چلاک کیوں راست بیانی سے روح گردانی کرتا ہے. نہ تو اس ہندو کا نام لکھا، نہ اس آریہ کا پتہ بتلایا. ان دنوں نامہ نگار قادیان گیا تھا، اس کی تحقیقات بھی کی، مگر کوئی گواہ اس قسم کا نہ ملا جو آپ کی تائید کرتا. البتہ جب الہام کتاب میں درج پایا گیا جو ہندو قید سے چھوٹا تھا وہ اس کی اصلیت سے انکاری ہے. پس یہ بھی آپ کی چال ہے. پنڈت صاحب کے کسی پیرو کا آپ نے نام نہ لکھا اور نہ وہ آپ کے الہام کا مصدق ہے. وہ تو کوئی گمنام ہوگا. میں اعلانیہ معجزات محمدیہ عیسویہ و غلام احمدیہ کا انکاری ہوں. لاکھوں آریہ اور صدہا مسلمان بھی میرے شریک ہیں. یہ مقدمہ بازوں کی نشانیاں اور قانون کی دست گردانیاں. وکیل خصوصاً ان معاملوں میں چلاک ہوتے ہیں، اس قسم کی پیشگوئی میں بے باک. نامہ اس نے کہا کہ سردار محمد حیات خان جب معطل ہوئے تو ہم کو خواب میں خبر ملی کہ کچھ خوف نہ کرو، خداوند ہے وہ تمہیں نجات دے گا. چنانچہ حیات خان بری ہو گئے. 60-70 آدمی گواہ ہیں جن سے 10-12 آدمی ہندوؤں کے ہیں، آریہ سماج کے، وہ بھی ہیں شامل. جن دنوں سردار محمد حیات خان معطل ہو رہے تھے ان کے تمام خیر خواہ بریت چاہتے تھے اور اکثر دست دعا رہتے تھے، جن میں ہزاروں اہل حنود اور ہزاروں مسلمان ہیں. گورنمنٹ عادل نے جب بعد تحقیقات کا عمل کے ان کے ذمے کوئی قصور ثابت نہ پایا تو بری فرمایا، جس کا مفصل حال گورنمنٹ گزٹ میں مطبوع ہو گیا. آپ کا الہام تو سراسر غلط نکلا. الہام کے فکرے یہ ہیں خدا قادر ہے تمہیں نجات ہوگی. کیا اس سے کوئی ذی عقل حیات خان کی بریت ظاہر کر سکتا ہے؟ جب اس طرح سردار صاحب بری ہوئے اور ان کے ہزاروں روپے خرچ ہوئے تو آپ نے براہین احمدیہ کی امداد کے خیال سے خام خواہ خیر خواہوں سے بننا چاہا، مگر وہاں دال گلنی آپ کے سراسر وہم و خیال ہے اور آپ کا گواہ آریہ بھی انکاری ہے اور کوئی ہندو بھی شہادت نہیں دیتا. خدا آپ کو شرمندہ کرے. 10واں واقعہ لیکرام نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ خواب میں مرزا صاحب نے مسیح کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا تھا نا، گوشت کے ساتھ، روٹی کے، گائے کے گوشت کے ساتھ. بڑی محبت بھی باہمی ہوئی. یہ خواب کیسی عظیم شان ہے، اگرچہ اب تک پوری نہیں ہوئی مگر پوری ہو جائے گی. مسیح کے ساتھ روٹی کھانی تو فخر کی نشانی ہے اور وہ بھی خواب میں. مگر مسیح کی زندگی میں یہودا اسکریوتی وغیرہ تمام شاگرد اس کے ساتھ کھاتے رہے اور آخرکار اس کو مسیح علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. اس سے اگر آپ عیسائیوں کو فریب میں لانا چاہیں تو دشوار ہے. وہ آپ کے مکر و فریب سے بیزار ہیں. 11واں یہ واقعہ لے کر میں نے براہین احمدیہ کے بنانے کی اجازت بھی خدا سے پائی اور 10,000 روپے کا اشتہار دیا. 1865 میں یہ خواب میں نے دیکھا تھا اور اسی روز محمد صاحب کی زیارت بھی ہوئی اور بی بی فاطمہ نے یہ کتاب مجھے دی. 10,000 روپے کے اشتہار کی صلاح آپ کو خدا نے نہیں دی مرزا صاحب. آپ نے صریحاً جھوٹ بولا، بلکہ یہ صلاح تو حکیم کشن سنگھ آریہ نے آپ کی جہالت و سفلہ پن کو تمام عالم میں منتشر کرنے کے خیال سے دی تھی. دروغ گو را حافظہ نباشد. 12واں یہ بیان کیا اس نے کہ ایک ہندو آریہ باشندہ قادیان طالب علم مدرسہ بیمار ہوا. عمر اس کی 20 سال کی ہے. وہ بمرض دق
मुबतला था और मेरे पास आया करता था। खुदा ने मुझे इल्हाम दिया, कुल ना या ना रकूनी बरदम व सलामा, यानी हमने बुखार की आग को कहा कि तू सर्द और सलामत हो जा। चुनांचे कई हिंदुओं को इसकी बाबत इतला दी और उसको भी, और खुदा के भरोसे दावा किया गया कि ज़रूर सेहतयाब हो जाएगा। आखिर वो हिंदू सेहतयाब हो गया। अब ये तो है मिर्ज़ा साहब की खबर। लेखराम क्या कहता है? वो कहता है जहाँ तक कादियान के बशिंदों से वाज़े हुआ वो सिर्फ़ इसी कदर है कि मिर्ज़ा साहब के मसाहल देने और नेज़ आपने खानगी इलाजों से इसे सेहत हुई, ना कि इल्हामों से। यानी वो जो टूने टोटके करते थे, आपके वालिद भी हिकमत करते थे, पक्की पुक्की दिती राम आ गया, भारत बना लेते हैं मिर्ज़ा साहब। बस सिर्फ दावा ही दावा है। अगर आप हकीम ना होते और वो आपकी दवा और आपके खानगी इलाज ना कराता और आप मियाद मुकर्रर करते और निगरानी करने वाले नामा निगार जैसे होते, तब इल्हाम की हकीकत की कली फाश होती। बगैर सबूत के दावा ज़बानी सिर्फ लंतरानी है, ना कि इल्हाम आसमानी। अब ये पता नहीं सीरीज़ तो हम 14वां होता है कि 15वां होता है। कहता है मिर्ज़ा को खुदावंद करीम ने रुपए का इल्हाम पहुँचाया, खुदा का इल्हाम सच्चा निकला। एक आर्या उसका गवाह है। इसकी बाबत वही आर्या कहता था कि इन दिनों हमको बसबब ज़रूरत के ख्वाबें आया करती थीं और मिर्ज़ा साहब को लोग खतूत अरसाल करते थे, बाद अज़ां रुपया आते थे। बल्कि मिर्ज़ा साहब के ख्वाबों से तो मेरी अक्सर रास्त हुआ कर सच्ची हुआ करती थी और मिर्ज़ा की झूठी। मिर्ज़ा साहब के इल्हामों के गवाह लाला मलावामल लाला शरमपत राय हैं। उन्होंने आजकल एक इश्तिहार भी मिर्ज़ा के बरखिलाफ़ तबाह कराया है, जो इसी किताब के आखिर में दर्ज है। मैंने मिर्ज़ा साहब की इस कदर ज़बान दराजियाँ देख कर एक ख़त सेक्रेटरी आर्या समाज कादियान के नाम लिखा है, और वो ख़त ये है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बराइन अहमद में लिखा कि मैंने आर्या समाज कादियान वालों को करामात वगैरह ख्वार की आदत बतलाई और इल्हामात की लज़्ज़तें चखाई हैं और उनके दिल की बातें भी बूझी हैं। आया ये सच है या नहीं? इसके जवाब में एक ख़त कादियान से मेरे नाम आया, जिसकी नकल लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़ेल में दर्ज की जाती है। जनाब मुकर्रम व मुअज़्ज़म बंदगान लेखराम साहब, नमस्ते। तुम्हारा इश्तिहार दरबारा इस्तफसार हवाल इल्हामात वगैरह के जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने या उनकी निस्बत बराइन अहमदिया में लिखा होगा, वो पहुँचा कमाल खुशी हासिल हुई। जनाब मन, यहाँ पर समाज नहीं है, हम सिर्फ 4-5 अशख़ास आर्या मत वाले यहाँ कादियान में हैं और हमसे कोई किसी किस्म की करामात वगैरह उनकी का कायल नहीं है। हम लोगों के जो असूल आर्यों के हैं वही हैं। फ़कत न्याज शरमपत राय किशन सिंह, राम जंक्शन अज मकाम कादियान, ज़िला गुरदासपुर, मार्च 1884। इससे तंग आकर मिर्ज़ा साहब ने फिर वो कादियान के आर्य और हम किताब लिखी थी, जिसमें उनको कहा था कि कसम खाओ कि तुमने मेरा कोई इल्हाम नहीं देखा। बहरहाल लेखराम कहता है कि एक दफ़ा मिर्ज़ा साहब के मकान पर कादियान में नामा निगार बैठा था और चंद मुअज़्ज़ज़ आर्य और चंद मुसलमान भी तशरीफ़ रखते थे। मिर्ज़ा साहब ने गुफ्तगू दौरान कहा कि मुझे फ़रिश्ते दिखाई देते हैं, जिस तरह आजकल नहीं जंबा साहब कहते हैं कि मुझसे हवाएं बातें करती हैं, दीवारें मुझसे बातें करती हैं। इसी तरह उस ज़माने में मिर्ज़ा साहब कहते थे कि मुझे फ़रिश्ते दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि क्या सच कहते हो? जवाब दिया कि हाँ। मैंने कागज़ के पर्चे पर पेंसिल से हरफ लिख कर अपने हाथ में रख लिया और पूछा कि बराए मेहरबानी फ़रिश्तों से पूछ कर बतलाओ कि मैंने कौन सा हरफ लिखा। एक अरसा तक कुछ मुंह में गुनगुनाते रहे। उसके बाद कहा कि इस तरह नहीं, किसी और जगह रखो। मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। फिर पूछा तो थोड़ी अपनी झुका ली और ख्याली और वहमी फ़रिश्तों से पूछते रहे, मगर कुछ ना बतला सके और शर्मिंदा होकर लाजवाब हो गए। इस समर के वहाँ पर 10-12 आदमी गवाह हैं। मिर्ज़ा साहब भी गालबन हल्फन इनकार ना कर सकेंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कहना है कि फिर उसके बाद 2 दफ़ा बजरिया ख़त रजिस्ट्री शुदा हकीकत दीन इस्लाम बदलाइल वाज़े इनको मुतनब्बे किया गया और दूसरे ख़त में भी यही लिखा गया कि इस्लाम वो दीन है जो अपनी हकीकत पर दोहरा सबूत हर वक्त मौजूद रखता है। एक माकूल
दलाइल से जिनसे असूल हक़ का इस्लाम की दीवार मजबूत और मुस्तहकम साबित होती है। दूसरी आसमानी निशानात और ताइदात और गैबी में कशफ़ात रहमानी इल्हामात और मुखातबात और दीगर ख़ारिक़ आदात जो इस्लाम के कामल मुतबईन से ज़हूर में आती हैं, जिनसे हकीकी निजात इसी जहान में सच्चे ईमानदार को मिलती है। ये दोनों किस्म के सबूत इस्लाम के गैर में हरगिज़ नहीं पाए जाते और ना उनको ताकत है कि इसके मुकाबला पर कुछ दम मार सकें। ये तबलीग मिर्ज़ा साहब ने की। जवाब दिया पंडित लेखराम ने। उसने कहा, आप शेखी मारने को तो शेख चली से भी बढ़कर हैं, और है भी सच। पहले आपने प्रिंस बिस्मार्क वज़ीर आज़म सल्तनत जर्मन को रजिस्ट्री भेजी, आपने मिस्टर ग्लेडस्टोन को दावत की, आपने न्यूयॉर्क में लॉर्ड साहब को ख़त लिखा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत साहिबाना आपके पास आपकी रजिस्ट्री पहुंची जिसमें आपने लिखा था कि 1 साल तक आकर मेरे पास ठहरो या ख़ारिक़ आदत व आसमानी निशान बतलाऊँगा, वरना 200 रुपया माहवारी के हिसाब से तनख्वाह बतौर हरजाना या जुर्माने के दूँगा। आप 30 मार्क हैं बल्कि 50 मार्क हैं। वो हकीकत दीन इस्लाम वाले ख़त क्यों तबाह न कराए, कहाँ छुपा रखे? मैंने आपको इस कदर ख़त लिखे और तबाह भी कराए और आप हीला हवाला फरमाते रहे। इस वक्त वो हकीकत इस्लाम का दोहरा सबूत कहाँ तख्ता ताबूत की तरह पड़ा था। जब मैं 2 माह कादियान में रहा, आपके बाला खाने में भी शराइत मुबासा के वास्ते हाजिर हुआ। वो दोहरा सबूत किस लाहौत में गया और करामात के मतलब जिस कदर अल्फाज आपने जमा करके काफ़िया बांधा है, इन सब का जवाब मौजज़ात की तरदीद में आ चुका है। ज़्यादा सवाए फजूलियात के इसमें और कुछ नहीं। फिर पंडित लेखराम कहता है कि 10,000 रुपये का इश्तिहार आपका झूठ का सरापा है, फ़रेब है, जेल साजी है। आपकी मनकूला और गैर मनकूला किसी किस्म की जायदाद इस कीमत की नहीं है। तमाम कस्बा कादियान के हिंदू मुसलमान आर्या वगैरह मेरे गवाह हैं, बल्कि तमाम ज़िले गुरदासपुर के लोग आपकी कल्लाशी और ज़िली या मुआश से आगाह हैं कि आप एक कल्लाश और बेरोज़गार आदमी हैं। तकज़ीब इब्राहिम अहमदी के ख़ात्मे पर पंडित लेखराम ने लिखा है कि जिस कदर मिर्ज़ा साहब ने अपने इल्हामी और कुरानी ख़जाना बेमानी और ख्याली एतराज़ किए थे, उनके जवाब अव्वल मरतबा 1 अक्टूबर 1884 को रूबरू एक जमात कसीरा के आर्या समाज गुरदासपुर में सुनाए गए। उसका बायस सिर्फ यही था कि शायद किताब देर से तबाह होवे, जहाँ पर बावजूद फासला करीब के इश्तिहार इरसाल करने पर मिर्ज़ा साहब मुबासा के वास्ते तशरीफ़ ना लाए। दूसरी मरतबा कादियान में जाकर तमाम बशिंदगान कादियान को जवाब बराहीन अहमदिया का अव्वल मिर्ज़ा साहब की किताब से एतराज़ पर अपनी किताब से और ज़बानी जवाब सुनाए गए, जिस सबब से इस गिरदो नवा का बच्चा इनकी मक्कारी और यारी से ख़बरदार हो गया। कादियान जाने की वजूहात से एक वजह यह है कि मिर्ज़ा साहब ने इश्तिहार दिया था कि जो आर्या हमारे पास आवे और एक साथ रहे, अगर इस अरसे के अंदर ख़ारिक़ आदात और करामात सदाकत इस्लाम से मुशर्रफ ना हो तो हम उसको 200 रुपया माहवार करके हर महीने हरजाना या जुर्माना देंगे। मिर्ज़ा साहब को किसी शर्त पर कायम कराने के वास्ते 3 मरतबा इल्हामी कोठा, यानी वो जो मिर्ज़ा साहब का कोठा था चवारा, उस पर भी गया, मगर मिर्ज़ा साहब किसी शर्त पर न ठहरे। 1 दिन से लेकर 2 साल तक रहने की शराइत को भी मंजूर किया, मगर मिर्ज़ा साहब किसी इकरार पर न जमे। अगर करामात का नामो निशान भी होता तो ठहरते, मगर वहाँ तो आसमानी निशान का नामो निशान नदारद है। हाँ, खुदा के फजल से इतना ज़रूर हुआ कि उनकी आमदनी के तमाम नाजायज़ वसाइल बंद हो गए। यक्कों में बैठ कर यानी तांगों में बैठ कर दूर दराज शहरों से मुसाफरों का पीर साहब की ज़ियारत को आना, नज़रें चढ़ाना कतई मसदूद हुआ। आखिर नौबत बई जार रसीद के तमाम जमा किए हुए सरमाए को खा चुके और कुछ रुपया कर्ज लेकर अम्बाला की तरफ हिजरत कर गए। हज़ारों चोचले करता रहा कसम के साथ, नाइक भी पूरा किया मुनकरे ज़मानी ने, दिखा के नाज करिश्मा जहाँ को बहलाया, बहुत सा लूटा है लोगों को कादियानी ने। सबों को देता था बेटे पर इसकी बदकिस्मत, न छोड़ा उसको सही हमल की गरानी ने। यानी हर बार तो हमल गिर जाता था। नजूमी लोगों को बतलाता था फलक के हाल, बला में डाला उसे कहरे आसमानी ने। बड़ा जो बोल है हर एक को गिराता है, रुलाया मिर्ज़ा को भी उसकी लन तरानी ने। ये शेर उसने लिखे हुए हैं तकज़ीब इब्राहिम अहमदिया के आखिर पर।
وہ کہتا ہے کہ افسوس کے باوجود اس قدر دعوی کہ مرزا نے کسی کو بھی بپایا صداقت نہ پہنچایا اور ہمیشہ عند الاستفسار مکر و فریب کو کام فرمایا. یہ جو میں نے عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ اس لیے سنائی ہیں کہ ان کو اپلوڈ کریں اور ساتھ میری طرف سے یہ چیلنج لکھیں کہ بھئی پنڈت لیکھ رام نے یہ جو آپ کے الہامات کو رد کیا ہے اس بنا پر کہ وہاں پر کوئی گواہ نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے آپ نے لافظنی کی ہوئی ہے. کیا جواب دیا بھئی مرزا صاحب نے تکذیب براہین انبیاء کا کیا جواب لکھا, اور پنڈت لیکھ رام کے ان اعتراضات کو اگر ناکوں چنے چبوائے پنڈت لیکھ رام کا منہ بند کیا تو وہ عبارات پڑھ کے سنائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو جی پنڈت لیکھ رام نے جو مرزا صاحب کے الہامات پر اعتراضات کیے تھے مرزا صاحب نے اس تحریر میں اس کتاب میں ان کو دور کر دیا ہے. انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی قادیانی وہ ثبوت پیش کرتا ہے. اگر ثبوت نہیں پیش کرتا تو ماننا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے ایسے ہی ابتدا کی تھی جو کچھ لیکھ رام نے ان کے بارے میں لکھا ہے. بس جی. ماشاءاللہ بہت خوب. کہنا ہلے نا بڑے لوگوں نے ہلے کے تھی کہڑی کتاب پڑھ رہے ہو کوئی ایسی بہت تھلے نا شروع ہو گیا سی. حالانکہ تھی مرزا صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہو اپنا بندہ لیکھ رام نے جواب دس رہے تھی اپنے تو گل ہی نہیں کر رہے. ختم نبوت دہشت گرد تو یہ عامر بھائی پپو ملک بھائی آئے نا انہوں نے کال چکو نا انہوں نے جان دی مان چاہیے. اچھا میں کہہ رہا سی میرا مائک میوٹ سی. میں کہہ رہا سی ضیا بھائی میں 45 منٹ دا پیریڈ اپنا پورا کر دیتا, تسی کوئی گل کرنی تو کر لو. میرا اتنا ہی سی, میں ہی بس سنانا چاہتا سی. ضیا بھائی موجود ہو؟ کیا کیا جائے جی عامر بھائی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس میں پنڈت لیکھ رام نے سبب تالیف کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا تھا. اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یہ اس کے کلیات عاریہ مسافر جو رسالہ ہے اس کے حصہ سوم صفحہ نمبر 432 پہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ تکذیب براہین احمدیہ و نقصہ خبت احمدیہ کی تصنیف کے لیے ہمارا ارادہ دین محمدی کے خلاف کیا کریں, ہمارے مخالف آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے, بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ ہم ایسے تمام معلومات سے دنیا کو آگاہ کریں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے. آگے وہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب آئینہ کمالات میں کیا لکھا ہوا ہے, معقول جواب سے آری ہو کر کمینہ حملوں پر اتر آئے اور 7 بچن میں اس قدر بد زبانی کو کام میں لائے کہ جعفر زٹلی کو بھی شرما دیا. تو بس یہ آگے بھی کافی لمبا مضمون ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا نہیں تھا, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم ایسا لکھیں. تو یہ جو ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بکواسات کرنی شروع کی اور ان میں تیزی آتی کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کا خود کا اپنا اقرار موجود ہے, ان کا پنڈت لیکھ رام کا. وہ کہہ رہا ہے اس نے یہ اسی وقت
1897 میں یہ اشتہار جو ہے وہ شائع کیا ہے، جو طریق یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف کوئی کتاب لکھیں، یعنی کہ وہ اس کے بعد جتنی جو گستاخیاں ہوئی ہیں ہندوؤں کی طرف سے، تو ہندوؤں کو اکسانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ بس یہ میں کنڈیشن کرنا چاہتا تھا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ میں سے کسی نے بات کرنی ہے؟ بلال بھائی، ابو بکر بھائی، یوسف بھائی، پپو تھلے کال پاندے پہ پپو دی کال سن لیں۔ اچھا جی عامر بھائی، میرا ایک ہے اس میں سوال، یہ جو